A very good morning to all. A hearty welcome to today's seminar on अखंड भारत संकल्प उत्सव, भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के लिए बनो. I welcome all the dignitaries on the dais, respected principal sir, and our esteemed resource person for today, Dr. Shiv Prasad Tripathi. I would request principal sir to please do the honors of felicitating our guest. Student, kindly please assist sir. Thank you so much. This event celebrating the 79th Independence Day would remain incomplete without our national anthem. So, I would request all to please stand up for a second. Thank you so much to everyone. Please have your seats. Now that we have instilled the sense of nationalism into us, I would like to welcome our dear student Ashirvad Sahu from NCA to present the Amrit Vachan. सुप्रभात अमृत वचन भगवान आदि शंकराचार्य कहते तीनोटी वस्तु जीवन में मिलवा बहुत दुर्लभ मानव जन्म मानव वृद्ध को उठी ईश्वर होबार इच्छा एवं श्रेष्ठ व्यक्ति मान सानिध्य भारत में जन्म हेले एई तीनोटी सहजरे मिल पारे। Thank you so much Ashirvad, that was really beautiful. Now there is a sweet student of ours, Shubhalakshmi Maharana from MCA, who is going to present us with a beautiful song. सूर्य
नव प्रभातर सूर्य होइछे देखो रे पूर्व दिगे नव प्रभातर सूर्य होइछे देखो रे पूर्व दिगे आत्मनिर्भर धर्मानुशासित आत्मनिर्भर धर्मानुशासित जीवन विकसे उठे जीवन विकसे उठे स्वदेशी भावना भरिछि प्रेरणा स्वदेशी भावना भरिछि प्रेरणा त्यागर महक छूटे त्यागर महक छूटे भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रेरणा पराणे जागे प्रेरणा पराणे जागे नव प्रभातर सूर्य होइछे देखो रे पूर्व दिगे नव प्रभातर सूर्य होइछे देखो रे पूर्व दिगे देखो रे पूर्व दिगे देखो रे पूर्व दिगे थैंक यू Thank you so much, Shubhalakshmi. Now, coming to the main event. Today, I am extremely privileged with having an eminent personality with us today. Dr. Tripathi is an assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering at SOA, deemed to be university, with over 15 years of teaching experience. Sir earned his doctorate from the prestigious National Institute of Technology and has made significant contributions to the technical and social research areas like computational intelligence, combinatorial optimization, and natural language processing. He has also worked towards the development of scheduled tribes, underprivileged communities, and the betterment of Indian education system. We are honored with the presence of such personality among us, who is here today to share his insight and thoughts. Let's welcome Dr. Tripathi sir with a big round of applause. Hello. Esteemed principal, beloved faculty members over here, and my dear student friends. Today I got emotional when somebody told Amrut Bachchan, because in the first college in Bhubaneswar I have ever seen where there is a official event and Amrut Bachchan is said. Amrut Bachchan is such a thing which was the core of Indian education system. भारत जब जब शिक्षा के बारे में सोचा तब तक अमृत वचन ही एकमात्र था जो कि इंसान को परिवर्तन करने के क्षेत्र में आगे जाता था। ये अमृत वचन अगर एक बार हम अच्छे से सुनेंगे कौन बोला, क्या बोला और किस संदर्भ में बोला था, तो ये परिवर्तन अवश्य होगा सब में। So I thank you the organizers who is organizing such a nice event. And this is Prasad Tripathi. I belong to Computer Science Department of SOA. Somebody has madam has told about me. So let me go to the topics. This is the agenda of mine. Today I will go through all these topics. So before entering into all these slides, I just recall the Jangan one today. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Banga, Vindhya, Himachal, Jamuna, Ganga, Kuchal, Jardi, Taranga. ये सबने हम सुने अभी। अगर इसके अंदर जाएंगे, पंजाब है क्या हमारे पास अभी? आधा है, आधा पाकिस्तान में। सिंध है क्या? पूरा नहीं है। बंग है क्या? द्राविड़ भी आधा है, श्रीलंका है हमारा। तो कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं बहुत सारे चीज। उसको याद रखने के लिए आज का दिन
जो अखंड भारत के बारे में बोले कि इतने बड़े देश में ऐसा क्या हो गया कि ये टूट गई देश और कैसे बिखरा, आगे क्या होगा, इसके बारे में एक दिन सोचने का हमको मौका मिला। इसलिए जब वो मैं पूछा क्या बोलना है मुझे, तो बोले एक टॉपिक दिए, भारत को जानो, मानो, बनो और बनाओ। इसमें बनो बनाओ मतलब बीएड में स्वामी जी का हमको पता है। जानो और मानो, जानना तो सब लोग जानते हैं भारत को, और क्या जानना है, हम तो मानते हैं हम भारतवासी, फिर क्या मानना है। तो फिर थोड़ा मैंने रिसर्च किया, देखा कि और कुछ जानने के लिए है क्या, अब मानने में कुछ कहीं गलती हम कर रहे हैं क्या, एंड बी कैसे होंगे और मेक कैसे करेंगे। ये चार चीज और थोड़ा सा एक बात देखेंगे, उसके बाद अखंड भारत के ऊपर भी आखिर में आएंगे। तो जब जानो के बारे में सोच रहा था मैं, तो ये है भारत हमारा। अभी जो हम देख रहे हैं ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया, ये एक कुछ दुर्भाग्य कुछ साल का परिणाम है ये, वरना हम ऐसे थे, कभी ना कभी ऐसे फिर से होंगे, इस आशा में हम आज का दिन मना रहे हैं। तो किसी ने बोला था पहले जानना उसके बाद मानना, ये गलत है। हमारे वेद, हमारे संस्कृति ये बोलता है पहले मानो फिर जानने का प्रयास करोगे, और जो जानोगे वो अच्छा जानोगे। वरना अगर पहले जानने की ठान लेंगे, अगर ये बढ़िया है मैं मान लिया, मतलब इसके बारे में जानना कि काम क्या क्या करता है, उसके बाद पता चला कि ये 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के बाद ये ऑफ हो जाता है, तो मेरा मूड भी ऑफ हो गया, ऐसा नहीं है मेरे लिए। तो वी आर गेटिंग जजमेंटल, इसलिए पहले मानते हैं। ये मेरा अभी टूल है, अभी जो 40 मिनट आधा घंटा मैं यहाँ बोलूंगा, ये मुझे हेल्प करेगा, ये मान के मैं चलूंगा। तो इसका एक उदाहरण है, तो पहले जानने से पहले मानना क्यों है। इजराइल का एक स्टोरी है। इजराइल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एसीटोन एक केमिकल होता है, जो कि बंदूक जो गन पाउडर होता है उसके लिए यूज होता है एसीटोन। तो एसीटोन बनाता था कौन? जर्मनी, और कोई नहीं बनाता था। जर्मनी और वर्ल्ड को सारा एक्सपोर्ट करता था। जब जर्मनी के साथ युद्ध होगा ब्रिटिश का, तो देगा कौन एसीटोन? तो एक यहूदी थे जिनका नाम है वाइजमैन, चेन वाइजमैन। वो बहुत कष्ट करके बनाए, वो यहूदी थे मगर ब्रिटेन बॉर्न थे, इसलिए वो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के लिए वो बनाए एसीटोन। और उसके बाद हमको पता है क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अच्छा सब हुआ, और होने के बाद जब एलिजाबेथ ने बोले कि वाइजमैन को बुलाओ, उनके लिए हम जीते, उनके लिए हमारा बच गए बहुत लोग, और तो उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। तो उनको बोले मांगो जो मांगना है। फेलिसिटेशन में बहुत हुआ हर जगह ब्रिटेन में। आखिर में बोले क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो बोले हमारा यहूदी का लैंड चाहिए। हम लगभग 83 सी से हम घूम रहे हैं 2000 साल, लगभग 1803 इयर्स तक हम दुनिया में हर जगह घूम रहे हैं कि हमारा इजराइल देश एक होगा कभी, वो देश हमको चाहिए। तो ये बोले उस देश में पानी नहीं है, मतलब खंडर बन के है और उसमें कुछ उगता नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्यों लोगे तुम? तुमको एक अफ्रीका में जगह देता हूं, अपना देश बनाओ, जितने सारे यहूदी हो वहां जाओ, अपना इजराइल बनाओ। वो ठुकरा दिए। वो उसी दिन, क्योंकि अफ्रीका पूरा ब्रिटेन के अंदर था, उसी दिन उनका देश साइन हो जाता और एक नया देश, और बहुत अच्छा था। वहां मिनरल्स थे, कोल्स था, उधर पेट्रोलियम था, सब कुछ था उस देश में, उस जगह में, जिस जगह ये एलिजाबेथ ने दिए। अगर वो नहीं लिए, वो बोले हमको वही इजराइल चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि जिस जमीन से उनको निकाला गया था उसी जमीन पे ही वो एक होंगे। और वो 1800 साल से ज्यादा, लगभग 2000 साल वो सारा देश घूमे। घूमने के बाद फाइनली मैं 14 मई 1948 में वो लोग वहां बसे जाके थे। और जहां भी मिलते थे यहूदी लोग अपने एक दूसरे को बोलते थे एक दिन इजराइल बनेगा, हम जाएंगे अपना मिट्टी। ये था इजराइल, वो मानते थे इसलिए हुआ। अगर वो जानना चाहते कि वो मिट्टी में कुछ नहीं बनता है, नहीं होता है, चलो छोड़ दो। जैसे ऑक्साइड जो लेने के टाइम पे
हमारा देश के एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोले कि वहां कुछ उगता नहीं है, वो छोड़ दो, वो मतलब डेजर्ट टाइप का है, तो चाइना ले लिया। तो किसी ने उस टाइम में वो नेहरू जी को बोल दिया कि आपका सर में बाल नहीं है, उसको दे दो। तो ये जानने का प्रॉब्लम है, समस्या है ये। अगर मानते कि वो हमारा भूमि था तो हम स्ट्रगल करते उसके लिए। और इजराइल लोग, यहूदी लोग स्ट्रगल किए और उनका देश बन गया। इसलिए मानना बहुत जरूरी है। वो 1813 साल तक वो घूमे। कैन यू बिलीव? मतलब मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, उसके बेटे, वही लोग वही बात करते हैं कि चलो इजराइल बनेगा एक दिन, बनेगा एक दिन। हजारों साल के बाद बना इजराइल। पोलैंड स्टोरी हम जानते हैं। पोलैंड क्या हुआ? पोलैंड में वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड, जब नाजी लोग पोलैंड में घुस गए तो पुलिस लोग कहां गए? इधर उधर घूमे, पूरा भागे वर्ल्ड। कोई भी देश उनको अपनाया नहीं। जो देश गए वो एक्सप्लॉइट हुए। एक देश था भारत। जब आए वो, उनको वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भवः के नारा देके उनको अतिथि रूप में रखा गया। और गुजरात जो था उस समय में नवनगर ऐसा था, गुजरात के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा, वो बोले सब लोग इधर आओ, मैं तुमको पनाह दूंगा बोल के उनके लिए एक जगह दिए और उनको खिलाए पिलाए, उनके बच्चों को पढ़ाए। बोले तुम लोग ऑर्फन नहीं हो, मैं तुम्हारा पिताजी हूं आज से, आई एम योर फादर। सब कुछ कराए, उनको ट्रेनिंग दिए, युद्ध सिखाए, फिर पोलैंड भेजे। आज पोलैंड के जगह जगह का नाम देते हैं दिग्विजय सिंह। गुड किंग स्क्वायर बोल की जगह है। उसके बाद जो एमपी बने वहां पे जाके पोलैंड के, वो एमपी लोग इनके नाम पे ओथ लिए, शपथ लिए इनके नाम पे। ऐसा हमारा देश है और ये हमारा संस्कृति है। हम चिकागो स्पीच हम जानते हैं विवेकानंद जी के। हमको ऐसा लगता है कि और कोई हिंदू या हिंदू रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन जैसे कि सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब नहीं थे, सब लोग थे उधर। पहले से भी हिंदू कल्चर के लोग गए हैं। उसी दिन भी एक चक्रवर्ती आई, फॉरगॉट द नेम, वो भी थे उस दिन, जो कि हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां। मगर विवेकानंद जी को इतना क्यों रिकॉग्निशन? क्योंकि उस पहले तक वही धर्म सभा में सब लोग एक बात बोलते थे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, अगर मेरा धर्म अपनाओगे तो यू विल गो टू हेवन, अदरवाइज यू विल गो टू हेल। सारे धर्म यही बोल रहे थे। ये अकेला इंसान आके ये बोले कि सब धर्म एक ही है, सत एक विप्राह बहुधा वदन्ति। सब जो यहाँ बैठे हैं सबका मार्ग एक ही जगह मिलेगा जाके। और ये अब तक कोई नहीं बोला था। इसलिए वो जब बोले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका तो ताली मारना बंद नहीं हुआ। उससे पहले और उसी दिन भी बाकी लोग भी बहुत बोले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो अकेला नहीं बोलते। मगर वो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सनातन कल्चर, जो हमारा देश का कल्चर, जो संस्कृति, वो संस्कृति को रिप्रेजेंट किए थे। और हमारा संस्कृति इतना अच्छा है, इतना ब्रॉड है, वो लोग पहले जाने। उसका और एक एग्जांपल आगे आएगा। भी मार्कोनी देखिए, 1895 में जब जगदीश चंद्र बसु, हमको पता है जगदीश चंद्र बोस बोलते हैं, वही वो इन्वेंट किए वो स्टैटिक करंट। कोलकाता में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिए, 85 फीट का ट्रांसमिशन करके दिखाए। देखने के बाद ब्रिटिश टाइम था, वहां गया मार्कोनी के पास वो चीज। मार्कोनी 1 साल के बाद आए, वहां से वो रजिस्टर करके सीख लिए चीज, यहाँ आके सीखे, वो अपने नाम पे पेटेंट बना दिए। भाई मार्कोनी फादर ऑफ रेडियो वेव्स बनाया कौन? जगदीश चंद्र बसु ने। वो फाइट क्यों नहीं किए? मेरा है बोलिए क्यों फाइट नहीं किए? क्योंकि हमारा देश का कल्चर ही ऐसा है, हम विद्या देते हैं, अपना नाम नहीं करते हैं। अभी देखना सबसे ज्यादा पेटेंट यूएस का है, चाइना का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है। भारत का पेटेंट कम है। हम अभी कुछ साल से पेटेंट हो रहे हैं। पेटेंट हमारा कल्चर के विपरीत है। हम सबको विद्या देते हैं फ्री में, इसीलिए हम लोग नहीं सोचेंगे पेटेंट आगे आएगा कैसे। हमारे टेक्नोलॉजी लेके बाहर, और एक एग्जांपल देता हूं, पाइथागोरस। सबको पता है पाइथागोरस रूल a² + b² = c²। ये वो निकाले कैसे? वही 1700 BC में बोधायन जो थे, बोधायन पता है, एक सेंट थे बोधायन, स्कॉलर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, जो अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला नष्ट हो गया है, फिर भी वहां उस समय था। वो वहां से ज्ञान प्राप्त किए और वेद शास्त्र पढ़े, वो निकाले सुलभ सूत्र। वो है अभी इंटरनेट में।
वहां लिखे वो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग था। उसके कुछ साल बाद पाइथागोरस यहाँ आए, अपने नाम पे पेटेंट कर दिए। हम लोग सब पढ़े हैं पाइथागोरस रूल। वो पाइथागोरस का है नहीं, ये हमको मानना है। कैसे मानेंगे? जिस जगह में, जिस भूमि में भूगोल है बोल के दुनिया में पहली बार हम लोग बोले, हमारे बोलने के कुछ हजारों साल के बाद में लोग बोले। गैलीलियो, सबको पता है गैलीलियो, वो भी जब ऐसे पृथ्वी गोल बोल दिए, उनको डेथ का सामना पड़ा। उनको डेथ मतलब वहां जो उस टाइम पे जो पोप के अगेंस्ट में जो जाता था तो उसको मृत्युदंड दिया था। और गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको कोई मार नहीं सकता, जेल में नहीं रह सकते, घर में बंदी करके रख दिया, उम्र के बाहर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे उसी समय में उस बुक में लिखा था उनके कि पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है, सूर्य घूमता है इधर से। ये उल्टा बोले जो सही है। और हम लोग ये हजारों साल से बोले हैं, हमको पता है भूगोल, हम पढ़े हैं सब क्लास में भूगोल। कोई सब्जेक्टिव होता है, भूगोल है, और ये हजारों साल से हम पढ़ रहे हैं। ज्यामिति से ज्योमेट्री जो आया, ज्यामिति किसका देन है? भारत का देन है। जीरो किसका देन है? भारत का देन है। अगर सब इधर आया तो एक साइंटिस्ट ने फॉरेनर आके यहाँ चुरा के खाली पाइथागोरस रूल ले गया। कैसे ऐसे हो गया? सब यहाँ था। रिलेशनल अलजेब्रा भारत का है। तो इतना सब देने से तो एक बीच में कोई छोटा चुरा के ले गया, वो बना दिया, तो पाइथागोरस रूल हम पढ़ रहे हैं अभी। अगर ये हम मानते कि ये हमारा कल्चर से गया है, तो हमारे जो जिस समय लिख रहे थे साइंटिस्ट लोग, जिस समय हिस्ट्रियन लिख रहे थे, वो सुलभ सूत्र का प्रोडक्ट बोल के लिखना चाहिए उनको। क्योंकि हम बोलते हैं सर सुलभ सूत्र में आईएसबीएन नंबर नहीं है। पब्लिकेशन कौन है? पेंगुइन पब्लिकेशन है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि फॉरेनर अगर पब्लिश करेंगे तब जाके वो सही डॉक्यूमेंट है। वराहमिहिर का जब एक है, आगे आएगा, मैं भूल गया उसका बुक का नाम, वो जब टीआईएफआर में देखा गया, बोला गया कि ये है प्लानिटरी मोशन। टीआईएफआर बोला ये वराहमिहिर का ये थ्योरी हम नहीं मानते हैं। ठीक कुछ साल के बाद जेई निकोलस आए, बोले ये सही है, इसको लेके हम शोध किए हैं और सही निकला। तब जाके टीआईएफआर बोला हाँ इसमें इसको रजिस्ट्रेशन कर दो, इसको रजिस्टर कर दो, ये सही है प्लानिटरी मोशन। तो कोई बाहर से आके बोलने के बाद ही हमारा आंखें खुलती है। हमारा ये प्रॉब्लम है। अगर हम मानते ये देश को, इस कल्चर को मानते, तो ये नौबत नहीं आती। क्यों टीआईएफआर बोले ये गलत है, निकोलस बोलेगा हाँ तो हाँ। वैसे मार्कोनी के बारे में जानते हैं? मार्कोनी जो जगदीश चंद्र बसु के बारे में बोला मैं, मार्कोनी के ग्रैंडसन आए थे इंडिया कुछ साल पहले, अभी उनका 100 साल ऐसा कुछ मनाया जा रहा था 2001 में या कुछ। वो खुद माने कि मार्कोनी इंडिया के स्क्रिप्ट से वो लिए हैं, वो मान गए कि भारत से ही प्रेरित होके वो अपना जो बना है। हर कोई वो रेडियो खाली फिजिकल डिवाइस बना दिए, कॉन्सेप्ट इंडिया का। वैसे आयुर्वेदा हम जानते हैं, दुनिया के आखिरी दिन में भी लोग आयुर्वेदा को ढूंढेंगे। एलोपैथी का सीजन चल रहा है अभी, कभी ना कभी बंद होगा। क्योंकि 2006 या 10 में आया हमारा एक जो थ्रेड, जो कि ऑपरेशन के बाद वो मिल जाता है अपने बॉडी के अंदर, वो भी पशु के इंटेस्टाइन से निकला हुआ। उससे हजारों साल पहले जो ऑपरेशन होती थी हमारे देश में, उस समय में वो था जो एक थ्रेड, वो पेड़ से बनाया जाता था और वो मिल जाता था बॉडी के अंदर। जब नालंदा और दक्षिणा यूनिवर्सिटी जलाई गई, वो जब कॉन्सेप्ट चला गया, तो उसके बाद से हजारों साल तक कोई बना नहीं पाया। कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज, कोई भी मेडिकल साइंस बना नहीं पाया। अभी बना है, और वो भी इंटेस्टाइन से निकला हुआ। हमारा तो वेजिटेरियन थ्रेड था और वो बॉडी के अंदर मिल जाता था। ये था हमारा कल्चर, ये आयुर्वेदा है हमारा। और योगा तो हम जानते हैं 2014-15 में जब योगा आया, 177 कंट्रीज बोले हाँ योगा को सब लोग अडॉप्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जा रहा है। वैसे देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर हम जो भी मानते हैं जनवरी फरवरी, ये लोग झगड़ा करके चला गया। उनको 100 साल 200 साल झगड़ा करके चला गया कि क्या मंथ क्या क्या रहेगा। उनका 10 महीना था पहले। दिसंबर, डेसी का मतलब क्या है? 10 है।
वो लास्ट मंथ है, 10 ही महीना था। जूलियस सीजर बोले मेरा नाम पे एक होना चाहिए महीना, तो क्या जुलाई रखो। फिर कितना, सबसे ज्यादा दिन 31 दिन होना चाहिए। फिर और कुछ साल के बाद अगस्टिस बोले मेरा नाम भी होना चाहिए एक महीना, अगस्त रखो। और जूलियस सीजर 31 मतलब मेरा भी 31। देखो क्या कितना समस्या है थिंकिंग प्रोसेस में, वो खेल चल रहा है सब। जुलाई अगस्त, हम जुलाई 31 अगस्त 31 है या नहीं, तो दो बढ़ गया, क्या करेंगे, जो घटाने के लिए फरवरी से काट दो। कुछ साइंस नहीं है, कुछ बेसिस नहीं है। जब रोमान गॉड के नाम पे हो गया पूरा, बाकी सब मौत का नाम। मगर उससे हजारों साल पहले हम लोग थे, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण से लेकर चैत्र तक, और हमारा 12 नक्षत्र राशि था, मेष से लेकर मीन तक, और एक राशि 3 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हमारे पास है। और ये हजारों साल से पहले था, और हम ये देखे थे आकाश में, और उसका नक्शा कैसा है, वो मेष जैसा दिखता है क्या, वो 3 नक्षत्र, तो वो मेष राशि है। मेष बोल के कोई तारा नहीं है, नक्षत्र है। नक्षत्र को मिला के वो मेष टाइप का दिख रहा है, इसलिए मेष उसका नाम दिया गया। वृषभ टाइप का दिख रहा है, इसलिए वृषभ नाम दिया गया। हम पोजीशन के बारे में सोच के हम डिसाइड किए कौन सा महीना रहेगा, क्या क्या होगा, और नक्षत्र और उसका रेडिएशन। हम जो बोलते हैं, बहुत लोग हम बोलते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता हूँ। मानना क्या है, हम जहां पैदा हुए थे, जिस वक्त सारे नक्षत्र सारे ग्रह थे ऊपर, कि कोई उदय हुआ था, कोई उदय नहीं हुआ था, जो हुआ था उसके रेडिएशन से हमारे बॉडी एंटीजन तैयारी कर दे, और जो नहीं था उसको बोलते हैं वो नीच था। चंद्रमा नीच था, मतलब क्या है, उसका रेडिएशन नहीं आया बॉडी में, तो उसको फाइट करने के लिए हमारे पास वो शक्ति नहीं आई, ताकि हमको ज्यादा सर्दी होता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि इसका चंद्रमा नीच है, इसलिए इसको सर्दी जुकाम होता रहेगा। साइंस क्या है, उसको फाइट करने के लिए हमारे पास वो रेडी नहीं है, ल्यूकोसाइट हमारा उतना सक्षम नहीं है उसको फाइट करने के लिए। फिर बोलेंगे एक सिल्वर का कुछ लगाओ, वो सिल्वर वो ऐड करता है वैल्यू, हाउ टू फाइट विद ऑल दिस हिस्टामाइन मटेरियल्स। ये साइंस है सब कुछ, और हम लोग, हमको प्रूफ चाहिए बोल के हम लोग आज तक उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाए। इकोनॉमी एंड एजुकेशन। इकोनॉमी कैसा था हमारा देश के, देखिए कितना मजेदार स्टोरी। 1998 में पॉल बेरोच बोल के वो टाइम्स जर्नल में लिखे कि भारत सबसे ज्यादा समृद्ध था बहुत सालों से। वो तर्क नहीं दिए, वो लिख दिए खाली टाइम्स जर्नल में कुछ ऐसे कॉलम करके। तो ये लोग पढ़े कौन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये सबसे रिच लोग, यूएस, जर्मनी, ये सारे रिच लोग देश का वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े धनी लोग, धनी देश, वो लोग देखे ये सच है क्या। तो एंगस मेडिसन को बोले आप एक टीम बनाओ और देखो भारत समुद्र सच में था क्या, तो क्या था, कैसे था, क्यों था। एंगस मेडिसन बहुत सारे रिसर्चर्स लेके, रिसर्च एसोसिएट लेके वो 4 साल रिसर्च किए। 4 साल के बाद एक बुक निकाले, द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियर पर्सपेक्टिव, 2001 में। अभी 25 साल के अंदर ये सब हुआ। और वो बोले 0 से लेके सी, मतलब जो 80 बोलते हैं हम, कॉमन एरा, 0 से लेके 1500 साल तक इस देश का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 32 टू 64 तक था। मतलब मिनिमम 32 मैक्सिमम 64, तो वो एक औसतन 46 दिए। असंभव है। कोई एक देश, 200 देश है दुनिया में, एक देश 50% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये कैसा देश है। उसको सोने की चिड़िया कौन बोला, सोने का गरुड़ बोलना चाहिए उसको। वो सोच नहीं पाए कि ऐसा हो सकता है एक देश बोल के, और वो था हमारा। और वो रिसर्च करके विद एविडेंस डेटा सब दिए एंगस मेडिसिन। और हमको पता है कोई बाहर का देश को, कोई बाहर का अगर डॉक्यूमेंट बोलता है तो हम ये सर बोलते हैं उसके बाद जाके हम मानते हैं ऐसा। और 1500 के बाद भी हमारा इतना कम नहीं हुआ। 1800 लगभग 35 तक हमारा 23% था वर्ल्ड जीडीपी में। उसके बाद जो लूटे हमारे देश में, इतना लूट हुआ आके
2% रह गया 1947 में। अभी फिर से हम ग्रो कर रहे हैं आगे। तो जब हम परातंत्र हो गए, जब हमारा तंत्र हमारा नहीं रहा, तब जाके हम टूट गए। तब तक ऐसा था। एजुकेशन सिस्टम 1947 में 17% था, शायद 14% था हमारा देश में। तो हमारे लोग क्या बोले, एक नैरेटिव दिए, ब्रिटिश आए तब जाके लोग पढ़े, जाने एजुकेशन क्या है, ऐसा बोलना हुआ समाज में। मगर सच क्या है देखिए, ये फैक्ट है। विलियम एडम, विलियम लिटनर, ये सारे पंजाब, बिहार, बंगाल के गवर्नर्स थे। और थॉमस मुनरो, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी, ये आता था हमारा उड़ीसा मद्रास प्रेसिडेंसी। ये गवर्नर्स, इनको बोला गया कि सर्वे करो एजुकेशन सिस्टम क्या है देश का। तो थॉमस मुनरो ने कलेक्टर ऑफ बेलारी, कर्नाटका का, उसका डेटा मैं ये रखा हूं, बाकी सबका डेटा है बहुत सारे। कलेक्टर ऑफ बेलारी ने जो दिया थॉमस मुनरो को, वो अभी भी है आर्काइव्स में। वो बोला उनके डिस्ट्रिक्ट में, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में 9,27,857 से 7 पॉपुलेशन था और 533 स्कूल, 6641 स्कॉलर्स। उसमें हमारे देश के स्कॉलर है 6398, 13 मुस्लिम स्कॉलर भी थे और 60 गर्ल्स थे, सारे हिंदू थे। बाकी कम्युनिटीज में गर्ल्स को पढ़ना मना था उस समय। और उसमें से 4 स्कूल था जो कि तमिल पढ़ाते थे, 41 पारसी, 21 पारसी, 23 मराठा, और ऐसे 226 तेलुगु, कन्नड़ा 235, एक इंग्लिश स्कूल था। और उस टाइम में भी भारत के दूसरे प्रांत से लोग आते थे और एक पढ़ते थे। प्रांत मतलब स्टेट। तो उनके भाषा के हिसाब से स्कूल भी था। 23 प्लेस में जो ब्राह्मण लोग थे वो पूजा करेंगे, वो इसके ऊपर शोध करेंगे हमारे शास्त्र के ऊपर। तो उसके लिए 23 लोकेशन में उनके लिए जगह बनाया गया और वो लोग थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ ये सारे पढ़े। रामायण महाभारत सबके लिए अनिवार्य था, सब लोग पढ़ते थे रामायण महाभारत, कोई भी कास्ट का हो। तब अभी कुछ नैरेटिव दे रहे हैं कि रामायण महाभारत जो अपर कास्ट के बुक्स है, नहीं, सब लोग पढ़ते थे वहां। तो ये था एजुकेशन सिस्टम। उस समय शल्य चिकित्सा था, ऑपरेशन कॉमन मैन जानता था। आगे एक एग्जांपल आएगा कैसे एक नाक का ऑपरेशन जो मिट्टी गढ़ने वाले एक इंसान ने किया है गांव में, वो बताऊंगा, उसकी स्टोरी आएगी। फिर एंशिएंट इंडिया के कुछ इन्वेंशन देखिए। फिबोनाची सीरीज, हम फिबोनाची पढ़ते हैं, उनके नाम पे है। लियोनार्डो ऑफ पिसा, उनको फिबोनाची बोला जाता था। वो 1170 में, 1170 से 1250 तक उसी के अंदर आया था। मगर हमारे विरहांका बोल के वो 700 एडी में लिखती थे, उससे पहले। फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत 800 बीसी। उसके बाद अबुल कासिम ने 10th सेंचुरी में अरब में वो शुरू किए। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक हमारे पाणिनि 5th सेंचुरी बीसी से है। और उसके बाद सोसुरे 1857 के बाद वो दिखाए। फिर पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको। मोशन ऑफ सोलर सिस्टम आज आर्यभट्ट ने बहुत साल पहले बोले हैं। अभी 16th सेंचुरी में कोपरनिकस बोले हैं, उसको सेम चीज को रिपीट किया है। हमारे इन्वेंशन फर्स्ट एरोप्लेन महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ में लिखा है। उसके बाद राइट ब्रदर्स सभी निकाले। वैसे आर्यभट्ट जीरो का इन्वेंशन हुआ था और ये इन्वेंट हुआ इसलिए और कोई बोल नहीं पाया बाद में कि जीरो हम निकाले हुए। तो चेस इंडिया से निकला हुआ, गुप्त युग में इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कॉटन इंडिया से निकला हुआ, नेचुरल फाइबर, और इंडिया से बाहर भी गया बहुत। हर देश इंडिया से लेते थे कॉटन उस टाइम पे। तो योगा इंडिया से है। ग्रेविटी आर्यभट्ट ने निकाले 628 सी में, आइजैक न्यूटन 17th सेंचुरी में निकाले। मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी कोपरनिकस तो एग्जांपल में दिया, बराहमीर कोपरनिकस टीआईएफआर का एग्जांपल, वो बाद में अभी आया। ये सारे एंशिएंट इंडिया के हम लोग क्या किए थे, बाकी कॉपी किया हुआ था। जैसे इसका डिटेल यहाँ था, कौन कब किया था। पिंगला ने किए थे, विरहांका ने किए थे 17 सी में, और विरहांका से पहले भी हुआ था। वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, ये तो मैं बोला सब कुछ। इसका डिटेल और कुछ है, कहां कौन सा बुक में लिखा गया है। पाइथागोरस थ्योरम, सोलर सिस्टम, एरोप्लेन, जीरो, चेस, योगा, ग्रेविटी, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे बहुत सारे हैं और मैं रख नहीं पाया।
ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिए। कोवरसी बोल के एक ब्रिटिश सोल्जर था, वो इंडिया नहीं था मगर ब्रिटिश सोल्जर था। वो टीपू सुल्तान के मैसूर में शायद वो युद्ध चल रहा था, वो जो सेनापति था उनको पकड़ लिया, उधर कोवरसी हार गए। तो उस टाइम में क्या करते थे पता है, जो हारते थे हमारे देश में, वो गला नहीं काटते थे, वो नाक काटते थे, नाक को काट देते थे। इसलिए आज भी प्रोवर्ब है, अरे नाक कट गई मेरा, नाक कट गई मतलब वो लज्जा। एक सोल्जर का अगर नाक कट गई मतलब ये सब लोग दिखाई देगा वो नाक नहीं है उसका, तो ये हारा है, जीवन भर लोग इसको हारा हुआ बोलेंगे। तो उससे लज्जा कुछ है नहीं, तो नाक कट गई जो बोलते हैं वही है, वो नाक सच में काटते थे। बाकी अलग संस्कृति लोग वो मारते थे, हम भी, हमारा भी युद्ध होता तो मरते थे लोग, तो मारते थे, मगर पकड़ा गया तो उसका नाक काटो, तो नाक काटने छोड़ते थे। और उसको पता है वो इंडियन था मगर ब्रिटिश सोल्जर था, वो नजदीक एक गांव में चला गया, वहां एक मिट्टी के काम करता था एक इंसान, उसको बोला कि मेरा नाक कट गया है, उसको कुछ करना है, वो नाक को पकड़ के ही चल रहा था ऐसे। उस टाइम में देखिए हमारा देश का कल्चर, हमको पता है कि ये ब्रिटिश का है, युद्ध हमारे देश के लोगों से क्या लड़ा हुआ है, मगर मेरे लिए सेवा के लिए आया तो मैं सेवा करूंगा ही। तो वो लिया अपने क्लिनिक में, क्लिनिक मतलब कुछ नहीं है, कुछ apparatus उसके पास होगा, और वो सर्जरी किया। ये कैसे पता चला, दो ब्रिटिश लोग वहां थे, थॉमस क्रूजो, जेम्स फिंडले, ये दो थे, उनके सामने ऑपरेशन हुआ और ये लिख रहे थे वो क्या क्या कर रहा है, लिखना भी मैं स्टेप दिया हूं इधर, वो क्या कैसे नाक को जोड़ा गया वो भी है यहाँ। वो जाके बाहर जाके बोले उनके देश में कि ऐसे ऑपरेशन होता है राइनोप्लास्टी, उसके बाद राइनोप्लास्टी आया फॉरेन में। और वो किया कौन, वो मिट्टी का काम करने वाला इंसान, वो डॉक्टर नहीं था, गुरुकुल में वो सीखा था, उतना सर्जरी नहीं होता था उस टाइम पे, इसलिए वो उसको प्रोफेसर नहीं बना पाया, उसका प्रोफेशन था मिट्टी का काम करना, मगर उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक था, वो गुण था और वो स्किल था, बहुत अच्छा था, इसलिए वो ये सब किया। और ये यहाँ से गया उधर निकले राइनोप्लास्टी, फादर ऑफ राइनोप्लास्टी उधर से निकल गया, फिर उनका बुक निकला, फिर सब कुछ उनका हुआ। मगर यहाँ से देखिए वो पूरा क्या क्या किए लिख रहे हैं, पहले क्या लगाया, कौन सा वैक्स लगाया, फिर कौन सा केमिकल था उसमें, क्या था, ये सारे लिखे हैं। इंडियन मेथड बाद में गया ब्रिटेन, वो लोग फिर शुरू की। ब्रिटिश सर्जन भी जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन ने ये इसको सक्सेसफुली राइनोप्लास्टी किए, यहाँ से कॉपी करके। तो ये देखिए कितना बड़ा देश को, दुनिया को परिवर्तन करने वाला ऑपरेशन एक मिट्टी का काम करने वाले इंसान के अंदर था, और उसके पास गर्व अहंकार कुछ नहीं था, वो आराम से काम करता था। वो ऐसा है क्या, चलिए आइए मैं कर देता हूँ बोल के क्या कर दिया, चला गया, उसको कुछ रिवार्ड नहीं, उसका नाम कुछ है नहीं, नाम मैं भी नहीं लिख पाया, मुझे भी नहीं मिला कौन था वो। हम उस पे विश्वास करते थे कि हम सब कुछ करेंगे, त्याग करेंगे, हमारा नाम ना रहे, इसलिए जब दान करेंगे, गुप्त दान का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, खुद का नाम मत बोलो कि मैं दान किया। अभी बहुत लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, हाँ 1000 रुपया रखो, मैं नाम मत लो, श्री जगन्नाथ लिख दो, ऐसा बोलते हैं। ये कल्चर है हमारा। ये कुछ एग्जांपल्स रखा हूं मैं, साइंस एंड संस्कृत बुक से लाया हूं। मतलब ये जो इन्वेंशन में बोला, ऐसे और भी हजारों इन्वेंशन है हमारे देश से हुआ था, कहां से हुआ था, कौन सा ग्रंथ है वो, कौन सा लाइन का श्लोक है वो लिखा है इसमें। इसको टाइम ज्यादा नहीं है बोल के इसको बड़ा करके मैं दिखा सकता था, वो बाद में आप देख लोगे। साइंस एंड संस्कृत बुक अमेज़न से खरीद लो, ये देख सकते हो। सोलर एनर्जी से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके सब कुछ ये हमारा सब हमारे ग्रंथ से आया था ये सारे। तो ये है हमारा कल्चर, और ये हमको जानना है मानने के बाद, मगर मानने से पहले जानना नहीं है, मानने के बाद जानना है कि ये हमारा देश है, और ये संस्कृति जो है ये हमारा धरोहर हजारों साल से, लाखों करोड़ों साल से है, और यही सारा दुनिया को रखता है। इसलिए जब वहां विवेकानंद जी बोले कि आई बिलोंग टू दैट लैंड, जिस लैंड में सारे लोग आके रह सकते हैं, सर्व समावेशी होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ही लैंड भारत में यही होता है। आज आप इजराइल को गाली दोगे, कल आपको वही पेड़ पकड़ेगा। आज बोलोगे इजराइल गेट आउट फ्रॉम माय इंडियन लाइफ, वो भी चला जाएगा, फिर से आएगा, प्लीज मुझे कुछ करने दीजिए। क्यों? वो इतना क्यों मेहरबान है? क्योंकि यहूदी जहां भी गए उनका शोषण हुआ, उनके महिलाओं को
खराब व्यवहार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, लूटा गया। केवल ये एक देश था जहां उनको बुलाए हम और अतिथि देवो भव के नारा देके उनको रखे हम, सब कुछ उनका किए। उसके बाद अभी बहुत सारे हैं, अभी भी हमारे देश में हजारों की संख्या में वो यहूदी है, और ये हमारा कल्चर है और ये हमारा स्ट्रेंथ है। कभी कभी लगता है कि हमको ये हमारा वीकनेस हो सकता है क्या, हम सबको बना देते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है। उदाहरण देता हूं, अभी जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब उतरेंगे हम बाहर फ्लाइट से उतरे, बाहर गए, हम जिसको देखेंगे ना, कोई भी अमेरिकन है नहीं, सब यूरोपियन है। इन्वेड किए वहां पे, उनके लोगों को मारे, जो बच गए वो जंगल चले गए, वो लोग अभी सब शासन कर रहे हैं। चंद हजार लाखों बच्चे हैं उधर, वो जंगल में रहते हैं, उनको रेड इंडियन बोलते हैं, क्योंकि वो सारे जनजाति थे, जंगल में रहते थे। यहां से जब गए ये लोग आक्रमण किए, उनको वही जंगल में रखे, अपना बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए। वो ब्रिटिश का तो यही प्लान था। उनका जो नरमपंथी थे रह गए ब्रिटेन में, बाकी चरमपंथी लोग बाहर आ गए। हम जो बोल रहे हैं कि वास्को दा गामा भारत का डिस्कवर किया था, ये पढ़े थे हम सब लोग। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया, उसका औकात क्या, वो डिस्कवर करेगा इंडिया को। वो दो लोग निकले, वो सारे पायरेट्स थे, कोलंबस और ये दो निकले घूमे के भारत को ढूंढना है, क्योंकि यही एक है जो कि सोने की चिड़िया, इसको लूटेंगे, चलो पता नहीं कहां जाना है भाई, तू ईस्ट चलो, मैं वेस्ट चलता हूं। वो गया, पहले गया, उसको लगा के ये इंडिया है, नहीं नहीं ये इंडिया नहीं, दूसरा लैंड है, तो इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दो। और थोड़ा आगे गया, फिर वो अमेरिका, उसको भी इंडिया बोला, फिर वहां मारामारी शुरू कर दिया, इंडिया कॉन्फिडेंट आके इंडिया बोल के, फिर देखा इंडिया है नहीं, तो अमेरिका वेस्टपुसी के नाम पे वो अमेरिका हुआ, मगर वो जितने सारे लोग थे उनको रेड इंडियन बोला गया पहले, क्योंकि ये इंडिया सोच के उनका नाम दिया रेड इंडियन, वो लाल दिखते हैं। अमेरिकन लाल नहीं है, वो गोरे हैं, लाल सारे जंगल में है वहां पे, रेड इंडियंस। एक्वामैन मूवी देखी हो क्या? एक्वामैन, वो हीरो है रेड इंडियन, मतलब नेटिव अमेरिकन। न्यूजीलैंड में हम जानते हैं हक्का जो होता है, उनका भी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऑस्ट्रेलियन है नहीं, है सब ब्रिटेन है, ब्रिटिश है सब। तो जहां जहां भी वो गए, वो पूरा कम्युनिटी एलिमिनेट हो गया, वो अपने पूरा बैठ गए उस देश में। बड़े बड़े देश, वो साउथ अफ्रीका में कैसे पूरा आ गए वहां पे, साउथ अफ्रीका पूरा, हमारे सब कॉन्टिनेंट है उधर, वो जब सब गोरे कोई नहीं है उधर, गोरे मतलब ब्रिटिश कोई नहीं है, सब जनजाति थे, वो कहां से आ गए? ये लोग पूरा मार। और एक बात, मारने का प्रक्रिया देखिए, उनको मिजल्स है ना, मिजल्स, वो वाला वायरस देके उनको वहां पे मार दिए लोगों को। सब लोगों को नहीं मार पाए, क्योंकि हजार लोग कैसे मारेंगे? वायरस घुसा दो, ऐसे ही मर गए वो लोग। जो डर के मारे चले गए जंगल, वो बच गए, वो अभी भी है। मगर भारत में आए, हमको मारे, हमको भी लूटे, और हमको कन्वर्ट नहीं कर पाए, हमको सबको परिवर्तन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। फिर मैं देख रहा था जब जागरण मन गा रहे थे, मैडम हमारे सामने बैठे हैं, वो चप्पल निकाल दिए, मतलब ये हमारा कल्चर है। कभी कभी हमको लगता है बहुत स्पिरिचुअल फील करते हैं, तो तुरंत ये चप्पल निकल जाता है। फिर बगल में और एक मैडम है, उनको लगा कि चप्पल निकालना चाहिए, तो वो भी प्रयास किए निकालने के लिए, मैं देख रहा था। तो ये क्या है? ये कोई सिखाया नहीं है हमको, ये हमारा कल्चर है। हमारा ब्रेन नहीं बोलता है कि नहीं चप्पल निकालना है, भगवान का कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिक चला जाएगा। किसी को देखते हैं नमस्ते से चला जाता है। इसीलिए 1835 में जो हमारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जेम्स कुक एंड टीम, यहाँ जो जेम्स कुक जो ऑर्डर दिए यहाँ घूम के सर्वे करने के लिए एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद उनको लगा कि मैकॉले बोला कि ये एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, तब जाके इनका कल्चर के ऊपर आघात होगा। और उनका प्रयास था कि आगे जाके ये लोग वही सूट टाई पहनेंगे, हमको भूलेंगे हमारा कल्चर को, इनका कल्चर खुद को भूलेंगे, तब जाके ये खुद को ब्रिटेन के साथ ऐसे खुद को फॉरेन में मानेंगे। और देखो हमको इंग्लिश लैंग्वेज सबसे अच्छा लगता है, टाई पहनना, सूट पहनना अच्छा लगता है, ये उनका प्रयास था। काफी हद तक वो सक्सेसफुल रहे। उससे पहले कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं छूता था। 1835 में लाखों गुरुकुल को जलाया गया, लाखों वहां पे जो कुलपति थे मारा गया, और उसमें जो हमारा था ग्रंथ सारे वो सब जला दिया गया। इसीलिए हमारे पास आज कुछ बहुत सारे जल गए, और ऋग्वेद भी नहीं है हमारे पास पूरा, इधर उधर करके सब कलेक्ट करके सब लिख रहे हैं। इसलिए उसके बाद
उपनिषद को वो लोग फिर से लिखे, ब्रिटिश लोग हमारे देश के कुछ कम्युनिस्ट हिस्ट्रियन को लेके वो लोग फिर से लिखे और लिखने के बाद खराब करके लिखे, ताकि ये लोग आगे जाके पढ़ेंगे और वो बोलेंगे कि हमारा ग्रंथ में सही नहीं लिखा गया है। इसके लिए फिर से वो लिखे। डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक बुक है, B.N. ओक लिखे हैं, आप देख पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ये इतिहास कौन पढ़ाया था हमको, सब गलत इतिहास। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, हम अकबर बाबर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? ये प्लान था उनका, ये पढ़ाओ ताकि डरे डरे रहेंगे, ये देश के युवा डरे डरे रहेंगे, ऐसा पढ़ाओ उनको, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल है। मगर हमारे देश के कल्चर अभी भी है, हमारे अंदर है, और वो एक दिन और अच्छे से निकल के आगे और भी अच्छा होगा, यही प्रयास से हम लोग ये सोचते हैं। तो बी एंड मेक, इसके बारे में बोलना क्या है, सबको अच्छा होना है, अच्छा करना है समाज को। अच्छा मतलब राष्ट्र का, खुद के अंदर राष्ट्र को समाना है और राष्ट्र के लिए जो होगा वो करना है। हम जा रहे हैं, पानी निकल रहा है नाली में, कोई नल में, और हमको बंद करना है, वो मेरा काम है सोचना है। तो एक कंसेप्ट बोला था, जहां कम वहां हम, जहां कोई नहीं है कुछ करने के लिए वहां मैं हूं तो मुझे करना पड़ेगा और कोई करेगा, ये भाव ना आना चाहिए। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे देख के बहुत लोग करेंगे। इसीलिए बी एंड मेक जो है स्वामी विवेकानंद जी का नारा, वो बी एंड मेक को सार्थक करना है। और हम सब यहाँ जो बैठे हैं, अभी क्लास खत्म हुआ, घूमने का टाइम था, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, भूखे बैठे हैं कुछ लोग, तो ये सब त्याग है हमारा देश के लिए। आज का 1 घंटा देश के बारे में सोचे, जाने और थोड़ा सा रिकैप हुआ, ठीक। ये कंक्लूजन है, उसमें मैं अखंड भारत का थोड़ा पीछे रखता हूँ। ये जो है देख रहे हैं हम, डेट ईयर लिखा हुआ है और देश का नाम लिखा हुआ है। इसी ईयर में 1876 में अफगानिस्तान चला गया हमारे हाथ से, हमारा देश चला गया, मतलब वो खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ फाइट करके वो तो ब्रिटिश ही चल रहा था उस टाइम पे, तो सब लोग अपना देश बना लिए उस टाइम पे, और हमारे देश से वो बिखरता गया, ताकि आगे जाके 1947 में हम जो एक बनाने का प्रयास किए उनको छू नहीं पाएगा, वो पूरा अलग हो गया। इससे पहले 1300 समथिंग में वो ईरान भी था, हमारा देश का हिस्सा था, सब कोई वीजा नहीं लगता था, सब लोग हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसा बात करते इन द सेंस साइकोलॉजी। जैसे अफगानिस्तान का नाम तो पता है, उपगणस्थान था, हिंदू कुश पर्वत आज भी है उधर, वहां यहाँ नीचे इंडोनेशिया तक जाओ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा बड़ा करेंसी 20,000 का है, उसमें गणेश का नोट है, फोटो है गणेश जी का। उनका एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरलाइंस। वहां तो 32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो तो इस्लाम कंट्री है, वो नाम दिया है गरुड़ एयरलाइंस। वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जाते हैं तो उनको भगवत गीता देते हैं, रामायण देते हैं, उनका राष्ट्रीय जो नाटक है वो रामायण है, रामकथा है। ऐसा कैसे? जब उनको पूछा गया, एक बार वाजपेयी जी गए थे बालीद्वीप, वो जब पूछे ऐसा कैसे आप लोग हो, कोई अहमद बोल के नाम वो हनुमान बना है, वो मोहम्मद राम बना है, ऐसा कैसे? वो बोले कि हम अपना मजहब बदले हैं मगर हमारे पूर्वज वही सनातनी थे, वही कल्चर हमारे अंदर है और आगे रहेगा, हम उसको भूलेंगे कैसे? उसी आधार पर हमारा जीना है। हालांकि हम पंथ परिवर्तन किए हैं, उपासना पद्धति परिवर्तन हुआ है, हम और किसी को पूछना भी और किसी को पूछ रहे हैं, मगर हमारा कल्चर एक ही है। राम को अपना पूर्वज मानते हैं। कंबू राजा जो थे, कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का, वो कैसे बना? वहां लोग कुछ पहनते भी नहीं थे, कुछ कल्चर नहीं था। राजा कंबू का सौभाग्यवश उनका शिप खराब हो गया, तो वो घूमने गए, क्या है ये लोग बोले, वो एक देश है जो कि सबको मारते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, डर के मारे मार देते हैं सबको, मत जाओ। ये वस्त्र लेके ट्रेड कर रहे थे, बहुत सारे वस्त्र लेके गए। वहां महारानी थी, वो महारानी देखे कि कोई आ रहा है तो सब मानने के रेडी हो गए, ये बिना डरे गए। तो देखे कि कोई सही इंसान होगा, वो एक्सेप्ट किए, पूछे क्या है, ये बताए, बोले कि ये है, हम यहाँ से आए हैं और ये कल्चर से आए हैं, तो सारे उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिए। वहां पे बहुत सारे मंदिर हुआ, उसके बाद बहुत सारा पूजा
हुआ, वो लोग सीखे कैसे शादी करते हैं, शादी कल्चर नहीं था, कैसे मैरिज कैसे हुआ, फिर उसके बाद वहाँ सिविलाइजेशन शुरू हुआ, वहाँ इन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ हुआ कंबोडिया में। तो ऐसे हम देश बना चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बाकी एग्जांपल क्या है, बाहर के पश्चिम के देश, बाहर देश जाके मारे हैं, मार के खुद को वहां बिठा के अभी खुद को उसी देश का सिटीजन बता रहे हैं। हम देश बनाए हैं, ये अंतर है वेस्टर्न कंट्रीज का और भारत का। इसलिए हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हमको खुद को मानना है कि हम उसी कल्चर से पैदा हुए हैं, उसी कल्चर से निकले हैं, उसी कल्चर का हम पार्ट है। उसके बाद जानना है हमारे देश के बारे में, ताकि किसी को बोल सकें। अगर ये पता होगा तो हम बोलेंगे अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहन को, अपने घर में पेरेंट्स को। पता नहीं रहता है सबको ये सारी चीज। तो फिर मानो पहले, उसके बाद जानना है, एंड बी एंड में हम बनेंगे और इस देश को बनाएंगे। इसी लक्ष्य, इसी भाव से मैं अपना वाणी को विराम रखता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। Thank you so much, sir. I believe somewhere the pride we have for our country has risen to new bounds with the amount of in-depth knowledge about the freedom struggles of this country that you have shared with us. Thank you so much, sir. It was truly eye-opening. As we come to the closing of today's Akhanda Bharat Utsav, let us pause for a moment to reflect on the journey we have taken together. This celebration is more than an event. It is a living reminder that Bharat is not just a nation, but an unbreakable thread of unity, culture and pride that binds us all. Before we bid you goodbye, there is a special closing video that captures the essence of Akhanda Bharat. Ashirwad, if you are ready. So let's give our Ashirwad a small moment to get ready with his video. Till then, let's welcome our dear student from MBA, Pragya Paramita Panda, with a soulful patriotic song that she wants to present. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद के सेना, जय हिंद के सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। That truly completed the essence of Akhand Bharat Utsav today. As we have come to the end of today's Utsav, let us carry with us the spirit of unity, the pride of our glorious heritage, and the hope for a future that honors the dreams of our ancestors. This celebration has not just been an event, it has been a reminder that Bharat is not merely a land but a living soul, woven together by culture, tradition, and shared values. On behalf of USBM, a big thanks to Dr. Tripathi sir for giving us his time and sharing such beautiful thoughts. Thank you to all my fellow colleagues and dear students for taking part in the celebration today in this monumental moment celebrating the Indian sense of nationalism. Thank you so much.